ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھے اور اپنے روپ سے خوش رہے، لیکن کچھ لوگ اس چاہ کو اتنی دور تک لے جاتے ہیں کہ ان کا پورا زندگی اور جسم ہی بدل جاتا ہے۔ کچھ نے اپنے چہرے اور جسم میں چھوٹے تبدیلیوں سے شروعات کی، لیکن آہستہ آہستہ یہ جنون ان کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ کبھی ہاتھ پاؤں متاثر ہو گئے، کبھی صحت کو خطرہ ہوا، اور کبھی ان کا روپ اتنا بدل گیا کہ پہچان پانا مشکل ہو گیا۔ ان میں سب سے پہلے ہے ڈینس ایونر۔ ملیے ڈینس ایونر سے، جو مشیگن کی ایک کمپیوٹر ماہر اور نیوی کے سابق فوجی ہیں اور جنہیں کیٹ مین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایونر کی تبدیلی کا سفر 23 سال کی عمر میں شروع ہوا، جب ایک مشن کی تقریب نے انہیں متاثر کیا۔ وہ ایک زندہ بلی کی طرح بنی۔ اس تبدیلی کا پہلا مرحلہ ان کے چہرے اور جسم پر ٹیٹو بنوانے سے شروع ہوا، جسے ان کا تقریباً ہر حصہ ڈھک گیا، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ ماہرین کی مدد سے ایونر نے 14 الگ الگ پروسیجرز کروائیں اور بہت پیسہ خرچ کر کے خود کو بلی جیسی شکل میں ڈالا۔ ان کے تبدیلی میں چہرے میں امپلانٹس، چپٹی ناک، نوکیلی کان اور یہاں تک کہ ایک روبوٹک دم بھی شامل ہے۔ ان کا انوکھا روپ جلد ہی میڈیا کا دھیان کھینچنے لگا اور انہیں لیکرک کنگ لائف جیسی شوز میں بلایا گیا۔ ایونر کی لگن نے انہیں گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی دلوایا۔ یہ سب سے مستقل تبدیلی کسی جیو جانور جیسی شکل پانے کے لیے ہے۔ ان کی کہانی یہ دکھاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی پہچان اور خود کو ظاہر کرنے کے لیے کتنی دور تک جا سکتے ہیں اور جسم کو بدلنے کی حدوں کو پار کر سکتے ہیں۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے اناستاسیا پوکریشوک۔ اناستاسیا نے صرف 26 سال کی عمر میں اس نے ایک عجیب خواب دیکھ لیا، دنیا کے سب سے بڑے گال پانے کا، اور یہ خواب ایسا تھا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سچ کرنے کی ڈھان لی۔ انٹرنیٹ پر DIY ویڈیوز دیکھ کر اس نے اپنے چہرے میں خود ہی فلرز لگانے شروع کر دیے۔ ڈاکٹروں نے منع کیا، لوگوں نے ڈرایا، مگر اناستاسیا تو جیسے ہی رکنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آج اس کے گال اتنے زیادہ پھولے ہوئے ہیں کہ لوگ پہلی نظر میں ہی چونک جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہے، لاکھوں لوگ اسے فالو کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز پریشان ہیں۔ اتنا زیادہ فلرز کبھی کبھی چہرے کو ہمیشہ کے لیے بگاڑ سکتے ہیں۔ ایشو ڈیمیج، انفیکشن، سب کا خطرہ ہے، لیکن اناستاسیا کہتی ہیں کہ یہ میری باڈی ہے، میرا لک اور یہ میری پہچان ہے۔ اس کی یہ کہانی صرف کاسمیٹک تبدیلی کی نہیں ہے، یہ اس حد کی کہانی ہے جہاں جنون، خوبصورتی اور خطرے کی بیچ کی لائن بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ کیرل برین۔ 47 سالہ کیرل برین نے اپنے چہرے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے اپنے فیس پر ایک عام سا ڈرمل فلر انجیکشن لگوانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ ڈیسیجن ان کی لائف کا سب سے بیکار ڈیسیجن تھا۔ کیرل نے اپنی 47 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے خود کو اور بھی زیادہ ینگ دکھانے کے لیے اپنے فیس پر 2 الگ الگ قسم کے فلرز لگوائے، جن میں سے ایک سلیکون بھی تھا۔ اس سلیکون فلر کو ان کے ماتھے اور گالوں میں انجیکٹ کیا گیا، لیکن اس عمل کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ ان کا پورا چہرہ سوج گیا، جس کے بعد انہیں پہچاننا بھی مشکل تھا۔ اس کے بعد کیرل نے اپنے اس چہرے کو ٹھیک کرانے کے لیے اور بھی بہت ساری سرجریاں کروائیں، لیکن ہر بار ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد 2013 میں انہوں نے ایک اسپیشلسٹ سرجن سے مدد مانگی، لیکن یہ تو ان کے لیے اور بھی زیادہ بھیانک ہو گیا، کیونکہ آپریشن کے دوران ان کے آپٹک نرو یعنی ان کی ایک آنکھ نرس میں کچھ نقصان ہونے کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ کی روشنی ہی چلی گئی، مطلب کہ اب تک کی انہیں اپنی دونوں آنکھوں سے دکھتا تھا، لیکن اس آپریشن کے بعد سے ان کی ایک آنکھ مکمل طور پر اندھی ہو گئی۔ انہیں اپنی ایک آنکھ سے مکمل طور پر دیکھنا ہی بند ہو گیا۔ پھر نمبر آتا ہے ہینگ میوکو۔ ہینگ میوکو کبھی کوریا کی بہت خوبصورت ماڈل اور گلوکارہ تھی، لیکن 28 سال کی عمر میں خوبصورت دکھنے کے چاہ نے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل دی۔ وہ اور اس کا شوہر، جو ایک امیر آرٹ ڈیلر تھا، جاپان گئے تاکہ وہ سرجری کروا کر جوان اور خوبصورت دکھے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا سائز غیر معمولی طرح سے بڑھنے لگا اور ڈاکٹر بھی آگے آپریشن کرنے سے انکار کر بیٹھے، کیونکہ اب اس کا چہرہ اتنا بدل چکا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی اسے پہچان نہیں پاتے تھے۔ مایوس ہو کر اس نے ایک بغیر قابلیت والے شخص کی مدد لی، جس نے اسے سلیکون انجیکشن دیے اور بعد میں خود لگانے کے لیے سوئی دی۔ جب سلیکون ختم ہو گیا تو اس نے سبزی کا تیل استعمال کے لیے دیا
दिया, जिससे इसका चेहरा सूज गया, निशान और खराबियां बन गई और लोग इसे मुनासिब पंखा कहने लगे। इसके बाद भी उसने टेलीविजन शो में जाकर चंदा लिया और 10 ऑपरेशन करवाए, लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सका। अब हैंग मियो को एक सादा थ्रिफ्ट स्टोर में काम करती हैं और अपने फैसलों पर पछताती हैं। इसकी कहानी ये दिखाती है कि खूबसूरती की ख्वाहिश कभी कभी इंसान की जिंदगी को बदल सकती है और गैर कंट्रोल्ड सर्जरी खतरनाक हो सकती है। जो चूना एक 17 साल की चीनी लड़की जिसकी सर्जरी जर्नी ने पूरी इंटरनेट दुनिया को हिला दिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में जब स्कूल में इसे बदसूरत कहकर छेड़ा गया तो इसने फैसला किया अब खुद को बदलना है। पहली सर्जरी थी डबल आईलिड और जैसे ही लुक बदला लोगों का उनके प्रति बर्ताव भी बदल गया। बस यहीं से उनकी दुनिया बदल गई। जो ने अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए 3 साल में 100 से ज्यादा सर्जरियां करवाई। नाक की सर्जरी, कान की कार्टेल से चेहरा बनवाया, आंखों को बारबी जैसा करवाया, ब्रेस्ट इम्प्लांट, लिप सेक्शन, सब कुछ। कोविड के साल में तो उसने अकेले 20 सर्जरियां करवा ली। साइड इफेक्ट्स भी हुई, याददाश्त कमजोर हुई, स्किन पर निशान पड़ गए, लेकिन जो आज भी कहती है कि सब कुछ इसके लायक था। इसके माँ बाप ने इस तब्दीली पर 5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए और जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन्हें स्कूल छोड़ने की धमकी दे दी। लारा फ्लेन बोयल। लारा कभी फिल्मों और टीवी शोज की मशहूर अदाकारा थी, खासतौर पर कानूनी ड्रामा दी प्रेक्ट्स में, लेकिन अब उनका नाम कुछ और वजह से बेस में है। उनके चेहरे में हुए बड़े तब्दीलियों की वजह से जो लोग उन्हें पहले देखते थे अब उनके चेहरे को तकरीबन पहचान नहीं पा रहे हैं। उनका चेहरा सूजा और बदला हुआ लगता है। लोग सोच रहे हैं कि इसमें नाक की सर्जरी, होंठ और गालों में फिलर, बोटॉक्स और शायद फेस लिफ्ट और ब्राउ लिफ्ट जैसी चीजें शामिल हैं। मकसद शायद उन्हें जवान और पुरकशिश दिखाना था, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ और बहुत से लोगों का कहना है कि उनसे इनका रूप कम अच्छा लगने लगा। बहुत से नाकदीन कहते हैं कि उन्हें थोड़ी रुकावट रखनी चाहिए थी क्योंकि उनका नेचुरल हाईवुड स्टाइल इनके लिए काफी खूबसूरत था। इजाफी फिलर ने उनके गाल और होंठों को बहुत भरा हुआ बना दिया, जिससे उनका लुक और भी गैर मामूली लगने लगा। रोड्रिगो अल्वेस और जेसिका अल्वेस। जेसिका अल्वेस, जिनका पहले नाम रोड्रिगो अल्वेस था, ब्राजीलियन ब्रिटिश टीवी स्टार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। पैदाइश के वक्त उन्हें मर्द समझा गया, लेकिन पबर्टी के दौरान एक हार्मोनल खराबी ने उनके जिस्म में तब्दीलियां की, जिससे उन्हें अपने फीमेल पहचान को महसूस किया। उसे अदम तहफ़्फ़ुज़ को दूर करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का रुख किया और अब तक 103 सर्जरियां करवाई, जिनमें से कुछ ने उनके सेंस ऑफ स्मेल को भी छीन लिया। जेसिका ने इस सफर पर $500 मिलियन खर्च किए और एक वक्त के बाद सबसे ज्यादा बदले हुए सेलिब्रिटी के रूप में पहचान पाई। उनके सफर को लेकर लोगों के ख्यालात अलग अलग हैं। कुछ उन्हें बॉडी पॉजिटिव का निशान मानते हैं, जबकि कुछ उनके सर्जरियों को खतरनाक मानते हैं। लेकिन जेसिका ने कभी पछतावा नहीं किया और अपनी सर्जरियों को मुकम्मल तौर पर अपनाया। जस्टिन जेटलिका। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स किसी को दिखाने के लिए उनकी भी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता है? जस्टिन जेटलिका एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर 1000 से भी ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं, जिन्होंने अपनी बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरियां करवाकर उसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। ये तुर्की के रहने वाले हैं जिन्होंने शुरुआती वक्त में अपनी होंठों की सर्जरी करवाई थी, क्योंकि उस वक्त उनके होंठ काफी छोटे दिखाई देते थे और पतली भी थे, जिसे उन्होंने बड़ा करने के लिए फिलिंग करवाई। जिसके बाद उनके होंठ तो ठीक लगने लगे, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें अपने बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का चस्का लग गया। जिसके बाद उन्होंने अपने बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी न करवाई हो। हम लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई ली। एक शख्स ने फिट रहने के लिए जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है और अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जैसी चीजें बना लेना है, लेकिन इन भाई साहब को अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जिम में जाकर नहीं बनाने थे। उन्होंने अपने बाइसेप्स की सर्जरी करवा ली। अभी जो आप इनकी बॉडी देख रहे हैं, ये कोई असली बॉडी नहीं है, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी से बनाई हुई है। उन्होंने अपना चेस्ट इम्प्लांट, शोल्डर इम्प्लांट, ब्राउन शेविंग, चेक ऑगमेंटेशन और लिप ऑगमेंटेशन जैसी बहुत सारी सर्जरियां करवाई हैं और इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जरी करवाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है। राजी नरेंद्र सिंह। राजी नरेंद्र सिंह मियामी की एक ट्रांसजेंडर औरत अपनी फीचर्स को निखारने और अपनी औरतों वाली पहचान को मुकम्मल तौर पर अपनाने
बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की तलाश में थी। सस्ते और जल्दी पाने के लिए उसने एक अनलाइसेंस्ड एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट करवाने का फैसला किया, लेकिन जो इसे मिला वो एक भयानक सजा बन गया। असली फिलर्स के बजाय इस एक्सपर्ट ने राजी के चेहरे में एक खतरनाक मिक्सचर सीमेंट, टायरसेलेंट और मिनरल ऑयल भर दिया। हाँ, वही मादे जो आमतौर पर कार रिपेयर में इस्तेमाल किया जाता है, इंसान के चेहरे पर नहीं। नतीजा क्या हुआ? राजी का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया, जिससे न सिर्फ इसे भयंकर जिस्मानी दर्द हुआ बल्कि जहनी तौर पर भी वही बुरी तरह से टूट गई। राजी का खुद एतमादी और पहचान मुकम्मल तौर पर बदल गई। इसे माशरे की तरफ से ताने सुनने पड़े और इम्तियाज का सामना करना पड़ा। इसकी जिंदगी में हर दिन दर्द और जहनी दबाव कई तह में जुड़ती जा रही थी। लेकिन फिर बूट रियलिटी शो में इसे एक नया मौका मिला। वहाँ के बड़े सर्जनों ने उसकी मदद की और चेहरे से वो खतरनाक मादा निकाला। लेन मी। दोस्तों, लेन का चेहरा देखने के बाद तो आप समझ ही चुके होंगे कि उन्होंने अपने चेहरे पर कितनी सारी प्लास्टिक सर्जरियां करवाई होंगी, क्योंकि नॉर्मल तौर पर किसी भी इंसान का चेहरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसी बात से कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने अपने चेहरे पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरियां करवाई होंगी। 12 दिसंबर 1992 को लेनमी का मेक्सिको में जन्म हुआ। उनके जन्म के वक्त उनका चेहरा बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। ये 1970 की दहाई में डांसिंग और सिंगिंग में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि मेक्सिको का हर एक शख्स उन्हें जानता था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ उनके चेहरे पर बहुत सारी ये एज से पहले ही बूढ़ी होने लगी और उनके चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ गई। लेकिन हमेशा जवान रहने की कोशिश भी उन्होंने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का सहारा लिया, जिससे उन्होंने सोचा कि ये अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद उनका चेहरा हमेशा की तरह जवान रहेगा। जब उन्होंने अपने चेहरे पर सर्जरी करवाई तो उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो ये थी कि उन्होंने अपने चेहरे पर एक अनाड़ी डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। अब उसे प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद एक हफ्ता तक तो उनका चेहरा बिल्कुल ठीक रहता है और उनके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक भी रहती है। लेकिन एक हफ्ता के बाद ही उनके चेहरे पर हुई सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो गए। उनके चेहरे में मोटी मोटी सी गांठें बन गईं और उनके चेहरे से पीप भी निकलने लगे, जिसके बाद उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। जिसके बाद काफी वक्त तक उनका चेहरा ऐसा ही रहा। लेकिन उनके सर पर सवार प्लास्टिक सर्जरी का भूत अभी भी नहीं उतरा था। उन्होंने अपने इस बदसूरत से चेहरा को वापस खूबसूरत बनाने के लिए चेहरे पर फिर से प्लास्टिक सर्जरी करवाने का फैसला किया और फिर उसके बाद से आज तक उनका चेहरा वैसा का वैसा ही है। उन्होंने अपने चेहरे पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरियां करवाई हैं, लेकिन फिर भी उनका चेहरा बदसूरत ही रहा।